सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। ग्रंथ नंबर 14 23 ਵਿਸਾਖ 2020 ਬਿਕਰਮੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ 23 ਵਿਸਾਖ 2020 ਬਿਕਰਮੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ? ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅਨੰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ, किस तरह खेल करता। जिस जिस उपाया जग, किन्ने उपाया? जिस, वो कौन है? परमात्मा। वो है परब्रह्म। जिस उपाया जग सो करता खेल कराए। गल समझ लगी? जिस उपाया जग सो करता खेल कराए। कराई या पास सारा माना बदल जाता। कराइन दा जे मैं थोड़ी विचार लवा, अपनी सोच रखा तो शायद इस लाइन तो अगे पढ़न की जरूरत फिर ध्यान ना सुनो। बाणी सारी तुसीं पढ़ी जाने। मैं किसी को ये नहीं कह रहा सही नहीं पढ़ते, बहुत सोहनी पढ़ते, पर एक गल देखो कि अगे गुंजाइश जे हैगी है तो फिर बाणी लैके चलू, थोड़ी चलां तुहाडे वास्ते। गवाही रखी आ 23 विसाख की। गवाही कदों की है? 23 ਵਿਸਾਖ। बिक्रमी किन्नी आ? 2020। बिक्रमी किन्नी आ? 2020। गुरमुख का नाम की? गुरसिख का अजीत सिंह बटाले का सी। एड्रैस दिता गया, कल कोई कवे ना भी की सी ते किदां सी ते कित्थे सी। फिर अजीत सिंह दे ग्रह बटाला, जिला केड़ा सीगा? गुरदासपुर। हुण जिले बदल गए, नाम बदल गया। फिर दो अखर या फिर इन्हूं सुन लो। जिस उपाया जग सो करता खेल कराएगा। किथे? अजीत सिंह दे ग्रह। उसे का सवाल किता।
ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੋ ਕਰਤਾ ਖੇਲ ਕਰਾਇੰਦਾ ਕਰਾਇੰਦਾ ਆਪੇ ਲਾਵਣ ਹਾਰਾ ਅੱਗ ਪੰਜ ਤਤ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਚਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਪੰਜ ਤੱਤ ਇਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਸੋ ਉੱਪਰ ਦੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੋ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਜੋ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੋ ਨੌ ਖੰਡ ਸੱਤ ਦੀਪਕ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਖਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਨਮ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਆ, ਉਹ ਜਾਮੇ ਕਈ ਧਾਰਦਾ। ਜੋ ਪੰਜ ਤੱਤ ਆ ਇਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਆ ਉਹ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਦਾ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਚ ਉਤਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ। ਔਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਖੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਈ ਗਈ ਤਦ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਤਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਜਿਤਨੀ ਰਚਨਾ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਖੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓ 993 ਚੌਕੜੀ ਚੌਕ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭੇਦ ਪਾ, ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਨੇ ਲਿਖਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਬਣਤਰਿਆ, ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਮਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ? ਮਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬਾਹਰ, ਬੈਖਰੀ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਬਣੀ, ਅੱਖਰੀ ਰੂਪ ਫੇਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਉਦਾਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਵੇਰਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਜਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਬੈਖਰੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ ਭਰੇ ਦੀ ਧਾਰ ਆ, ਫਿਰ ਬਸੰਤੀ ਬਣੇਗੀ, ਫਿਰ ਮਾਧਿਅਮ, ਫਿਰ ਬੈਖਰੀ ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੈਖਰੀ ਰੂਪ ਆ ਉਹ ਜਗਤ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਨਾਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਨਹਦ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੇਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਆ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੇਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਉਹ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ। ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਅਪਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਜਗ ਸੋ ਕਰਤਾ ਖੇਲ ਕਰਾਇਂਦਾ, ਆਪੇ ਲਾਵਣ ਹਾਰਾ ਅੱਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਘ ਆਪ ਵਰਸਾਇਂਦਾ। ਆਪੇ ਕਾਇਆ ਮਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਆਪੇ ਹੀ ਪੰਜ ਤੱਤ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਅੰਤਰ ਮੇਘ ਬਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਆਤਮ ਅੰਤਰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਵਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਸ਼ਾਂਤ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਪੰਜ ਵਕਾਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਾਂਤ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੱਲ ਲਾਗੇ। ਔਰ ਆਪੇ ਲਾਵਣ ਹਾਰਾ ਅੱਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਘ ਆਪ ਬਰਸਾਏਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ? ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਵਸਣ ਹਾਰਾ ਪਾਰ ਹੱਦ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ? ਵਸਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਸਦਾ। ਵਸਣ ਹਾਰਾ ਪਾਰ ਹੱਦ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ। ਵਸਣ ਹਾਰਾ ਪਾਰ ਹੱਦ ਹਦੂਦ। ਹਦੂਦ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਆ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਸਰੀਰ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਹਦੂਦ ਸਭ ਦੀ ਵੰਡ ਵੰਡਾਇਂਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ ਦੀ ਹਦੂਦ ਜਾਂ ਹੱਦ ਜਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਇਹਦੀ ਵੰਡਣਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵੈਮ ਆਪ ਵੰਡ ਵੰਡਾਇਂਦਾ। ਚੁੱਪ ਚੌਪੜੀ ਗੁਰੇ ਅਵਤਾਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਾ ਸ਼ਬਦੀ ਜਦ। ਕੋਈ ਜਗਤ ਵਾਲੀ ਜਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਸਤਿਯੁਗ ਚ, ਕੋਈ ਤ੍ਰੇਤਾ, ਕੋਈ ਦੁਆਪਰ, ਕੋਈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜਦ ਬਣੇ ਨੇ? ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਉਸੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਸ਼ਬਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਬਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਵੰਡੀ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਉਹ ਜਦ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਆ? ਆਪਣੀ ਜਦ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੁਗ ਚੌਕੜੀ ਗੁਰੇ ਅਵਤਾਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਾ ਸ਼ਬਦੀ ਯਦ ਸਦ ਨਾਮ ਸਦ ਨਦ ਨਾਮ ਵਿਚਾਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਦ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦੀ ਨਾਦ ਉਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅਨਹਦ ਦੀ ਧਾਰ ਚਲਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦੀ ਧਾਰ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੁਗ ਚੌਕੜੀ ਗੁਰੇ ਅਵਤਾਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਾ ਸ਼ਬਦੀ ਜਦ ਸਦ ਨਦ ਨਾਮ ਵਜਾਇਂਦਾ। ਲੱਖ 84 ਆਪਣੀ ਧਾਰੂ ਕੱਢ। ਲੱਖ 84 ਜੂਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ? ਆਪਣੀ ਧਾਰ ਚੋਂ। ਆਪਣੀ ਧਾਰ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ, ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਗਤ ਦੇ ਰਿਸਰਚਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਡੱਡੂ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਰਵਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ, ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਥਿੰਕਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ, ਤੀਜੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ
ਫਲਾਣਾ ਸੀ ਢੀਂਗ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਥ ਥਿਊਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਪਰੇ ਦੀ ਪਰੇ। ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਉਂ ਸਾਨੀ ਜਿਉਂ ਪੁਤਲਾ, ਕੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਤਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਅੱਗ ਲਾਓ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਹ। ਸਵਾਹ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜੇ ਐਟਮੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੜਨੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਲਣ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਪੇ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਣਾਈ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਰਨ ਦਾ ਫੇਰ ਡਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਨ ਦਾ ਫੇਰ ਡਰਿਆ। ਜੇ ਅਗਨੀ ਨਹੀਂ ਤਦ ਵੀ ਉਹਦੇ, ਜੇ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਹੋਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਮਰਿਆ ਵੀ। ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਆ, ਇੱਕ ਖੇਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਆ, ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਪੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਫਿਰੋ। ਖੇਲ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਲੱਖ 84 ਆਪਣੀ ਧਾਰੋਂ ਕੱਢ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵੰਡ ਵੰਡਾਇਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਕੀ, ਕਿਹੜੀ ਵੰਡ ਵੰਡੀ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ, ਆਤਮ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਆ। ਆਤਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਤਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿ ਲਓ। ਆਤਮ ਦਾ ਮੇਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਮੇਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਦੇਵੇ ਦਾਦ। ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਜੋ ਆ, ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਵਛ ਦਿੰਦਾ, ਦਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਵਸਤ ਅਮੋਲਕ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੱਦ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜੱਦ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਧਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਵਸਤ ਅਮੋਲਕ ਝੋਲੀ ਪਾਇਂਦਾ, ਜੁਗ ਚੌਕੜੀ ਖੁੱਲਣ ਹਾਰਾ ਜਾਗ। ਜੁਗ ਚੌਕੜੀ ਕੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਤਿਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਬੀਤ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਖੋਲਦਾ ਜਾਗ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਸਭ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋ, ਜੇ ਕਰ ਲੋ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਚ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਕਰ ਲੋ, ਆ ਵੀ ਕਰ ਲੋ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੋ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੋ। ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਤੇ ਕਦੀ ਵਾਧੇ 'ਚ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੰਮ ਘਾਟੇ 'ਚ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਦੀ ਵਾਧੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਧੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੋਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਝੱਟ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਆ, ਜਦ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੌਂਪਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਏਡੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨੀ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੇਰਾ 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 ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤਕਲੀਫ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਊਗੀ? ਤਕਲੀਫ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਓ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਦੋ ਬਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਦੇਵੇ ਦਾਗ ਵਸਤ ਅਮੋਲਕ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਝੁਕ ਚੌਕੜੀ ਖੋਲਣ ਹਾਰਾ ਚਾਗ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੁਕ ਚੌਕੜੀ ਚਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਵਤਾਰ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਰਾਮ ਕਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤਨੇ ਈਸਾ ਮੂਸਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਗ ਖੋਲਦਾ ਅੱਖ ਤੱਕ ਆਪ ਖਿਲਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਝੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖੋਲਦਾ? ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਖ ਖੋਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲਦਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮਨ ਵਾਸਨਾ ਹੂੜੀ ਕਾਗ। ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਮਨ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ? ਕਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਕਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦਾ। ਨਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ? ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਵੈਦਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ? ਚਲੋ ਲੈਂਦੇ ਸਵਾਦ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ? ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਾਈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ? ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਆ? ਹੈਂ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ? ਸਾਦਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੀਜੇ ਸੀਜੇ ਮੋਮੋ ਸ਼ੋਮੋ ਲਟਰਮ ਪਟਰਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਡੱਡੂ ਫੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੋ ਬੀਪੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਰਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਰਦਾਂ। ਹੈਂ? ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜੇ ਸਾਦਾ ਰੱਖੋ ਸਾਦੇ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਭਟਕਣ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ। ਮਨ ਵਾਸਨਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਤਮ ਮਨ ਵਾਸਨਾ ਹੋਣੀ ਕਾਗ। ਜੀਵ ਜੰਤ ਸਰਬ ਕੁਰਲਾਇੰਦਾ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਹੋਵੇ ਹੰਤਾ ਕੂੜੀ ਕਿਰਿਆ ਲੱਗਾ ਦਾਗ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਦਾ, ਕੂੜੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ, ਹਉਮੈ ਹੰਤਾ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਦਾਗ। ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਨਾ ਕੋਏ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਮੈਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਰਤੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕੰਤ ਸੁਹਾਗ। ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 4 ਸਾਲੀ ਜਾਂ 25 ਸਾਲੀ 10 ਸਾਲੀ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਲੇਸ਼ ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹੂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਹੂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ।
तो बहुते कहणगे भी तू जा, मैं नहीं रखना। जहाँ जनानी कह दूगी मैं तेरे नाल नहीं रखना। जे परमेश्वर एक पार ब्रह्म की मनौत करो तो दूसरे फिर खसम साध संत पंज तत्त शरीर वाले ज्ञान देने वाले खसमां की जरूरत नहीं ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? एक दी ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਜੇ एक दी ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? एक दी ਇੱਕ ਦੀ। ਸੁਰਤੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕੰਤ ਸੁਹਾਗ, ਸਾਚੀ ਡੋਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚੜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਡੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਬਬਾਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਤਮ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਤ ਵਾਸਨਾ ਰਹੀ ਭਾਗ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਨਾ ਚਾਰ ਛੇਰੇ ਭੱਜਦੀ ਆ, ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਫੇਰ ਫਰਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜਦੀ ਆ? ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦੀ ਆ। ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਘਰ ਘਰ ਹੋਇਆ ਲਾਡ, ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? मोदा ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਧਰ ਗਾੜੀ ਆਇਆ, ਇਧਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? हिंदी समझोगे? केड़ा आया पुत्र आया गाड़ी मेरा भी लगे हो तो सामने तरजीह ना होना वो तो सामने अच्छे बिठवा सो बेटा बात को लेकर चलेंगे। अगर बाद में कोई सवाल करना हुआ तो कर सकते, ठीक है? सवाल भी आपका तो जवाब भी, सवाल भी अंदर से उठता है तो जवाब भी, जवाब पंजाबी सवाल भी अंदर उठना तो जवाब कितों मिलना? ते जे अंदर वाले ना कोई गल करूँ तो अंदरों मिलूगा, ते जे अंदर वाले ना कोई आखी नहीं मिलाना तो जवाब कितों मिलू? फिर भटकते ही फिरना ना। अगर एक परमात्मा कितने हैं जो नए हैं? अवतार पैगंबर कितने हैं? नेक। और नेक जो है, हम संसार अनेकों से चल रहा है। जितने हिंदू मुस्लिम पारसी बोधी जैनी हैं सारे कितने चल रहे हैं? अनेक चल रहे हैं। जो मौजूदा स्थिति है, उन सिचुएशन जो चल रही है संसार की, झगड़ा, अब ये झगड़ा तेल का नहीं रहेगा, इकोनॉमिकली नहीं रहेगा। झगड़ा कौन सा आ जाएगा? मजहब का हो, मुस्लिम और क्रिश्चियन। झगड़ा कौन सा बनेगा? आपने सुना होगा, अगर खबरें सुनते हो, मुस्लिम कंट्री क्या कर रहे हैं कि सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाओ, हम क्रिश्चियन के लिए, बाकी दुनिया के लिए जिहाद करेंगे। बोलते हैं ना, सारे मुस्लिम बोल रहे हैं ना। इंडिया में जिहाद चल रहा है ना, दूसरे मुल्क भी क्रिश्चियन के ऊपर कमांड करने के लिए, जिहाद करने के लिए तैयार, लड़ने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है। सारी सृष्टि है ना तैयार। लेकिन कोई इंसान अपने भीतर के जो वकार हैं, जो कर्म हैं, जो दोष हैं, उनसे लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। इंसान प्राणी जो शरीर है वो एक, शरीर कितने हैं? एक को अपने अंतर के विचारों और वकारों को लड़ना है, लड़ना एक नहीं। और वकार भीतर कितने हैं? बहुत है। तो लड़ने वाला कितने हैं अंदर? आत्म कितनी है? ये आत्म उतनी देर वकारों से नहीं लड़ सकती जब तक ये एक परमात्मा की होती नहीं।
मेरी बात समझे? देखो, हम एक बात छोटी सी बात ले लें। रामा है, कृष्णा है, वामन अवतार है, नरसिंह अवतार है, कितने अवतार है? उन्होंने अवतरण किया ना। माता के पेट से पैदा हुए, जो पहले सुन चुके हैं, गर्भ से सारे पैदा हुए। जो गर्भ के बिना प्रकट हुए, को थम में हुआ, वो कहीं से हुआ, वो कहीं से हुआ, ठीक है। लेकिन जब तक उनका वजूद नजर नहीं आया, संसार वालों ने माना नहीं, संसार वालों ने माना नहीं, तो सब्र नहीं किया। लेकिन जो तसव्वुर करने की बात है, जो ज्ञान की बात है, रामायण की स्टडी करो, गीता की करो। कृष्णा ने क्या बोला था? अर्जुन, जब 18वां दिन था उसका, नहीं समझा, उसने बोला क्या सखा, वो निर्गुण भी मैं हूं तो सरगुण भी मैं हूं। लेकिन जो वसुदेव का बेटा था, वो तीर लगने से उसने शरीर एक बहाना बना लिया ना शरीर को, क्योंकि सदा जो वजूद है, जिसको जो खाने पीने और श्वास क्रिया के साथ चलता है, इसके सहारे चलता है, श्वासों के सहारे चलता है, वो भगवान सदा रहता, वो सदा भगवान नहीं रहता। जो सदा रहता है, अब पहले जो हमने पढ़ा है, शुरू किया है, क्या शुरू किया है? जो नए हैं सुन लो, थोड़ी एक दो लाइनें सुन लो। जिस अपाया जग सो करता खेल कराएंगा। जिस परमात्मा ने इस संसार को पैदा किया है, तो वही खेल कर रहा है। जो पैदा करने वाला है वही खेल कर रहा है। कैसा खेल कर रहा है? सो करता खेल कराएंगा। जो करता एक ही, करता कितने हैं? एक ही। अवतार पहले कलयुग तक, बुद्धा तक 23 अवतार हो गए ना, 23 अवतार हो गए ना, तो तब अवतार 23 हो गए, उनके बाद 3 पैगंबर हो गए, उनके बाद 10 गुरु साहिबान हो गए, तो कर्ता कितने रहे? कर्ता कितने रहे? एक। तो वो जो कर्ता था वो निर्गुणा था। जो कर्ता था वो क्या था? निर्गुणा था। वो निर्गुणा सरगुण के जरिए आगे यही आता है, तो वो संदेश देता है। सरगुण क्या कर, सरगुण की क्या खोलता है? भीतर में से आंख खोलता है। भीतर में से क्या खोलता है? आंख खोलता है। जगत वाले विद्वान जो है, जो वेदों शास्त्रों ग्रंथों में लिखा है, उसे दिव्य दृष्टि बोलते हैं। क्या बोलेंगे? दिव्य दृष्टि बोलेंगे, थर्ड आई बोल देंगे, तीसरी आंख बोल देंगे। वो कौन खोलता है? जो सारा कुछ बनाने वाला है। बनाने वाले कितने हैं? एक। लेकिन वो नजर नहीं। आंख जब खोलता है तो फिर वो नजर, आंख खोलता है फिर वो नजर आता है। देखो, उसको मिलने के लिए हम अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग तरीके से उसका नाम सिमरन करते हैं, उसका नाम सिमरन करते हैं। हम नाम सिमरन करते कितनों का है? कोई बोलता है कि हम राम का कर रहे हैं। हकीकत में राम, राम क्या है? राम का राम, जो राम का राम, राम का राम एक था, कान का कान एक था, लेकिन बार वालों के लिए दो थे। बार वाली सृष्टि के लिए दो थे, लेकिन वो है कितने थे? एक थे। निर्गुणा कितने थे? एक थे। शरीर युगों के हिसाब से अलग अलग हुए, तो 4 युग में 23 अवतार हुए। बाकी 24वें अवतार की इंतजार थी। 24वें अवतार की क्या थी? इंतजार थी, उम्मीद थी कि वो आएगा। और 24 जब आया, वो पैदा नहीं हुआ। जैसे हिंदू मिथ में सारे इंतजार कर रहे हैं, जो कल की अवतार है, जो निष्कलंक है, वो संबल में होगा। वो फैजाबाद के लागे नजदीक पड़ता है ना, शहर पड़ता है, वो गौड़ ब्राह्मण के घर होगा। गौड़ ब्राह्मण के घर पैदा होगा। गौड़ ब्राह्मण के घर कल की अवतार कैसे पैदा होगा? कौन उसका नाम रखेगा कि ये निष्कलंक है? हम किसी बंदे को नामजद कर देंगे। अगर वो थोड़ा करामाती हुआ तो बोल देंगे ये तो निष्कलंक है, कल की अवतार है, हम कहना शुरू कर देंगे। लेकिन निष्कलंक वो है जिसको कोई कलंक
नहीं, जिसको कोई दोष नहीं है। वो कौन है? जिसको कोई दोष नहीं वो निर्गुण है। जिसको कोई दोष नहीं वो कौन है? निर्गुण। वो कभी किसी माता के गर्भ में नहीं आता। जो निर्गुण है, जब वो संबल में अपनी बात करेगा, संबल शरीर, संबल क्या है? शरीर। उस मिट्टी के संबल में भी संबल वाला शरीर ही पैदा होगा, लेकिन जब संबल होगा वो 5 नदियों के बीच होगा। 5 नदियों के बीच होगा। 5 नदियों का मतलब क्या है? 5 नदियों का मतलब है पंचम शब्द की बात। 5 नदियों का मतलब क्या है? जलधारा का पंचम शब्द की बात। शब्द के जितने पंचम धारा हैं सारी पाक है। जलधारा सारी पाक है। पंचम शब्द को मिला के कितने शब्द बनते हैं? एक। एक से शरीर में 5 धार चलती है। 5 धार एक होके कितने बन जाते हैं? सुरती में जाके जब शब्द का मेल होता है कितने बन जाते हैं? सुरत और शब्द का एक मेल। और शब्द क्या है? इल्हाम, कलमा, संदेश, निर्गुण है, नूर है। और आत्म क्या है? आत्म भी नूर है, प्रकाश है। सभी इंसानों में है, धर्म कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, तो नूर कितने हैं? आत्म नूर कितने हैं भीतर में? एक। दूसरा है शब्दी नूर, कलमा है, जब संदेश देता है कि तेरा परमात्मा तेरे को मिलने वाला है, मैं तेरे साथ हूँ। जब ये आत्मा शब्द में समाती है तो शब्द की कहाँ से निकलता है? परमात्मा से निकलता है, निर्गुणा से निकलता है। जब निर्गुण का निर्गुण से मेल हो जाए तो प्राणी, तो आत्म परमात्मा का मेल हो जाता है, ब्रह्म और पार ब्रह्म का मेल हो जाता है, तो प्राणी संपूर्ण बन जाता है। प्राणी कितना बन जाता है? संपूर्ण। तो इसी तरह जब भगवान निष्कलंक के रूप में आएगा, कल्कि के रूप में आएगा, कलयुग के अंत में आएगा, तो वो संबल में प्रकट होगा। संबल में क्या होगा? प्रकट होगा। पैदा नहीं, पैदा नहीं होगा। पैदा शरीर होगा, लेकिन वो संबल में प्रकट होगा। संबल में क्या होगा? प्रकट होगा। जब वो प्रकट होगा तो वो अपने भीतर में से ग्रंथ पोथियां उच्चारेगा। नानक पातशाह की पछेन हुए जितने लाए की साथी आप ले लो, पढ़ लो, मिल जाएगा। जब जितने ने नानक पातशाह से सवाल किया कि आपकी जो खेल होगी 13वीं या 14वीं खेल होगी, तो नानक पातशाह ने बोला कि जित्या वो जगत ते न्यारा होएगा। वो जगत तो की होगा, बड़ा न्यारा होएगा। और वो उसका वर्ण क्या होगा? जट। उसका वर्ण कौन सा होगा? जट होगा। और उसका पहचान और क्या होगी? उसका पहचान क्या होगी? उसका परगना कौन सा होगा? बटाला। परगना कौन सा होगा? बटाला परगना होगा। वो जट होगा और अंतर में से ग्रंथ पोथियां उतरेगा। ग्रंथ अंतर में से क्या करेगा? अंतर से ग्रंथ पोथियां उतरेगा और जगत से न्यारा होएगा। ये उसकी पहचान नानक पातशाह ने। और जो वेद व्यास है उसने जो भविष्य पुराण है उसमें बहुत कुछ किया है कि निष्कलंक कैसे होगा, कल की अवतार कैसे होगा, कैसे कल में, कलयुग में वो पैदा होगा और छिन्न भंगर में पैदा होगा। और संसार में वो आता जाता रहेगा, कभी आएगा कभी जाएगा। जग में जो परमात्मा है बारंबार होता है, उसके आने जाने का किसी की कोई हिसाब किताब नहीं, गिनती नहीं है। तो संबल में तब पैदा होता है, संबल में तब प्रकट होता है, इसके लिए पैदा होता है कि जब वो शरीर को धारण करता है, शरीर में वो अपने स्वयं बल में उठता है, अपने स्वयं बल में अपने उठता है। जो अपने का अपना उसका स्वयं बल है, उसके ऊपर किसी व्यक्ति का दावा नहीं होता कि मैं नेकलंक हूँ, मैं नेकलंक हूँ। निष्कलंक कौन है? भगवान। निष्कलंक कौन है? भगवान है। ना मरता है तो ना जन्म लेता है। वो जन्म मरण से पार, कर्म तो कर्म से पार। कर्म जब करेगा शरीर करेगा, कर्म जब करेगा पंच तत्व शरीर करेगा। और जो निष्कर्मी है, जिसका कोई कर्म नहीं है, वो शरीर के भीतर होता है, बाहर नहीं। सभी को ज्ञान
अंदर से होगा, बाहर से ज्ञान नहीं होगा। देखो जितने ये ग्रंथ है लिखा हुआ, बाकी ग्रंथ है सारे लिखे हुए हैं। जब सभी ग्रंथों को आप पढ़ेंगे, उनमें से आप ज्ञान हासिल करोगे। कोई इंसान जो पढ़े लिखे है, वो कोई बोलता है कि मैंने चारों वेदों को पढ़ा था, मुझे चारों वेदों का ज्ञान है। कोई बोलेगा हमें शास्त्रों का ज्ञान है। कोई बोलेगा मुझे स्मृतियों का भी ज्ञान है। कोई बोलेगा मुझे रामायण का भी ज्ञान है। कोई बोलेगा मुझे गीता का भी ज्ञान है। सारे वेदों शास्त्रों का, जो बाइबल है, क़ुरान है, इंजील है, कुरान है, सबका ज्ञान है। गुरु ग्रंथ साहब है, सबका ज्ञान है। ये ग्रंथ पढ़ लो, सबका ज्ञान है। लेकिन सबका ज्ञान प्राप्त करके अगर भगवान की मिलनी नहीं हुई तो ज्ञान का कोई मतलब नहीं रह जाता। ज्ञान का कोई मतलब नहीं रहता। आप साइंस की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, जियोलॉजी की, बॉटनी की सब बुक्स पढ़ते हो, आपको ज्ञान हो जाता है। ये सारा ज्ञान परमात्मा पैदा नहीं करता। परमात्मा तो एक अंदर एक छोटा बिंदु जिसको दिखाई नहीं देता, इंसान को दिखाई नहीं देता। जब ये प्रकाशमान हो जाता है तो इसमें भगवान, इसमें से सारे ग्रंथ शास्त्र लिखे जा सकते हैं। ये ग्रंथ शास्त्र सारे इकट्ठे करके परमात्मा को पैदा किया नहीं जा सकता। परमात्मा इन ग्रंथों को लिखा सकता है, लेकिन ये ग्रंथों को सबको पढ़कर कोई प्राणी परमात्मा का रूप बन नहीं सकता। परमात्मा का रूप बन नहीं सकता। इसीलिए परमात्मा जो है वो प्राणी जितने हम हैं क्या कर रहे हैं कि परमात्मा का सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, उसका जाप करते हैं, उसका नाम जपते हैं, राधे श्याम करते हैं, सीते राम करते हैं, सतनाम करते हैं, वाहिगुरु का नाम करते हैं। और जब जब ये हम आराधना करते हैं तो महसूस करते हैं कि मन शांत हो रहा है। मन क्या हो रहा है? शांत हो रहा है। जब जब करते जाते हैं, ध्यान टिकता है तो शांत होता है। तो भीतर में से जब ध्यान टिकता लगता जाता है तो आंखों में से क्या आएगा? जब टिकेंगे थोड़ा थोड़ा, जब ये महसूस होगा कि मेरी दूरी है तो मैं पास नहीं जा रहा, तो वराग में क्या आएगा? आंखों में क्या आएगा? आंसू आएंगे कि मेरे में क्या कमी है। वो कमी को दूर करने के लिए आप फिर सिमरन करते हैं। जब करते रहेंगे फिर आप उससे थोड़ा थोड़ा जुड़ेंगे। आपको झलक पड़ेगी प्रकाश की, नूर की झलक पड़ेगी। जब जब झलक पड़ने के बाद जब ये प्रकाश सफेद हो जाए, आत्मा का प्रकाश सफेद हो जाए, तो फिर शब्द से मेल होगा। जब शब्द से मेल होगा उसके बाद आप चौथी से ऊपर, चौथी अवस्था है, और पांचवी में जाएंगे, फिर कंचन में जाएंगे जहाँ निशान साहब दिया हुआ है। सर गोविंद पातशाह ने कंचन धार का एक सिख के लिए निशान दिया हुआ है। सिख वही है जो उसका पाठ करके, उसका सिमरन करके, उसको आराधना करके और अपने शब्द गुरु को मस्तक झुका के, जैसे बाहर मत्था टेकते हैं वैसे अंदर उसको मस्तक झुका के मस्तक में वो आ जाए, कंचन धार आ जाए। वो कंचन धार जो शब्द की है, फिर वो किसको मिलाती है? लाल धार परमात्मा को। परमात्मा का रंग क्या है? लाल। परमात्मा का रंग क्या है? लाल। उसका क्या है? लाल। और सफेद से वो क्या हो जाता है? लाल। और कंचन, कंचन बनता है, फिर उसके बाद लाल होता है। वरना वो काले का काला, वरना तो रहता है का। ये ज्योत के जो भीतरी प्रकाश है वो 7 है। भीतरी प्रकाश कितने हैं? 7 है। समुद्र कितने हैं? 7। जल तारा कितने? 7 है। और शरीर के बंड कितनी है? 9 तुम्हारे। धरती के कितने खंड है? 9 खंड। 9 खंड और 7 द्वीप। ये रचना भी वही है, और मिट्टी की रचना भी वही। जो सारी रचना है, रचना रचनहारा बड़ा है, रचना उसकी छोटी है। रचना बर्बाद हो सकती है, रचनहारा बर्बाद नहीं होता। छोटी बातों से समझ लो। हमें रचनहारे से वास्ता, उसका कोई धर्म नहीं है। रचनहारे का कोई धर्म नहीं है, आत्म का कोई धर्म नहीं। जब सारी कायनात का खुदा परमात्मा गॉड वाहिगुरु एक हुआ तो सबका एक ही भगवान होगा, निर्गुण।
सबका भगवान कौन होगा? निर्गुण। तो ये आत्मा जो अंतर में नूरी है, ये क्या है? निर्गुण। आत्मा भी क्या है? निर्गुण। जब निर्गुण से निर्गुण मिल जाएगा, ये पंच तत्व का कल्याण हो जाएगा। जब तक निर्गुण से निर्गुण नहीं मिलता, कितनी कथावाचक हैं, कितनी कथा करते हैं, कितने गीता का ज्ञान देते हैं, वेदों का ज्ञान देते हैं, पुराणों का ज्ञान देते हैं, शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, रामायण का ज्ञान देते हैं, कितने ज्ञान देने वाले ज्ञान देते रहे, लेकिन वो ज्ञान देने वाले भी नूरी परमात्मा से अगर नहीं मिलते तो उनका ज्ञान देने का काम अधूरा है। अगर एक ज्ञान सुनने वाला उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने आप को समर्पण कर देता है, भगवान के आगे सरेंडर कर देता है, तो वो प्राप्त कर लेता है। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का दाता जो बना हुआ है, वो छोटा है, प्राप्त करने वाला बड़ा हो जाता है। क्यों? वो प्राणी एक, और किससे मिलता है? जो एक है किससे मिलता है? एक से। एक से मिल जाता है। एक ने सारी सृष्टि बनाई, एक ने सारे अवतार पैगंबर गुरु भेजे। एक ने कौन 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 भेजे हैं? अवतार पैगंबर गुरु भेजे। सभी को भेजने वाला कितने हैं? एक। जो भेजे गए हैं वो कितने हैं? अनेक। देखो, हमारे पास जो इतिहास है, सतयुग से लेकर कलयुग तक वेद शास्त्रों का ज्ञान। जब 4 वेद लिखे गए हैं ब्रह्मा के द्वारा, संत कुमार ने सारी रचना जो जैसे की है, अगर ये देखा जाए तो क्या, जब जो वो आए थे, कोई बात नहीं, जब वो आए थे, क्या उसके पहले भगवान नहीं था? उसके पहले भी भगवान था। उसके पहले शाही थी, कलम थी, कागज थे। उसके पहले कौन से भगवान ने, किस भगवान ने सारा कुछ बनाया? उसके पहले भी किसी भगवान का नाम है कि कोई अवतार है उसका कोई नाम आता है आपके पास? किसी ग्रंथ शास्त्रों में कोई नाम नहीं आता। तो वो भगवान क्या था? अनामी था। वो भगवान क्या था? अनामी था, निर्गुणा था। उसका नाम नहीं है, उसका नाम नहीं है। वो मरने जन्म लेने में मरता नहीं, पैदा नहीं होता, और सदा रहता। वो सदा रहता। तब वो था, उसके पहले भी वो था, 994 चौकड़ी युग के पहले भी वो था। जब ये धरती की रचना नहीं हुई, ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई, तब भी वो था। और अब कलयुग का समय है, निष्कलंक की बात चल रही है। कल की जो है निष्कलंक जो है वो निर्गुण है। निष्कलंक कौन है? निर्गुण भगवान है। और वो प्रकट होता है, पैदा नहीं होता। संसार में खामी यही है, ये प्रकट पैदा होने वाले के इंतजार कर रहे हैं। जिसको प्रकट होना है उसकी कोई इंतजार नहीं करता। जो प्रकट होने वाला, अगर उसके इंतजार करो, उसकी अभिलाषा रखो, उसकी इच्छा रखो, तो वो आपको मिल जाएगा। अगर किसी पंच तत्व का आसरा रखोगे, शरीर का आसरा रखोगे कि ऐसे रूप में मिले, वो आपकी मान्यता है, आपकी मंशा है। मंशा पूरी हो भी सकती है तो नहीं भी हो सकती, मंशा पूरी हो भी सकती है तो नहीं हो सकती। अगर आप निर्गुण आत्म करके निर्गुण परमात्मा की मंशा रखोगे, वो कभी अधूरी नहीं जाती, वो पूरी होती ही होती। और आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या सुनना चाह रहे हैं? आप क्या जानना चाह रहे हैं? ये बात आपको अपने मुंह से बतानी पड़ेगी कि आप कौन सा सत्संग किया। सत्संग वही है जहां जाके ऐसा संग हो, आत्म कहा किससे मिल जाए? परमात्मा से। सत्य संग वही है जो आत्म परमात्मा से मिल जाए। अगर परमात्मा से आत्म नहीं मिलती, वो सत्संग सत्य नहीं, वो सत्संग सत्य नहीं। इसलिए जब याद करना है तो एक को, जो रामा कृष्णा को भी बनाने वाला था, बोलेंगे कि रामा कृष्णा को कौन बनाने वाला था? वो तो खुद भगवान थे। मैं भी मानता हूँ खुद भगवान थे, और जो भगवान है वो है, वो था और वो रहेगा। राम कान वो कोटन कोट पैदा कर सकता है, इन लागू लफ्जों से वाद भी विद्वान खड़ा कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, राम का राम, जगत वाले राम ने
अपने ऋषियों मुनियों से ज्ञान प्राप्त किया, उनसे शिक्षा ली, लेकिन जो भीतर का अंतर का राम था वो कहाँ से शिक्षा लेता, उसको पढ़ाने वाला कौन है, वेदों की रचना करने वाला कौन है, जो वेदों की शास्त्रों की जो अस्त्र शस्त्र की विद्या समझाने वाला है वो कौन है, अभिमन्यु के गर्भ में ज्ञान देने वाला वो कौन है, वो निर्गुण को ज्ञान दिया गया, तो वो जो चक्रा था उसको तोड़ लिया, जब वो ज्ञान देना बंद हो गया, बाहर निकल कर ज्ञान देना बंद हो गया माता उठकी, तो वो बाहर निकल नहीं पाया। इसी तरह ये सारा चक्र है, ये सारा शरीर का क्या है, ये चक्र है। चक्र को से निकलने के लिए प्राणी को एक ही बात करनी पड़े, एक ही बात करनी पड़ेगी। मैं आप बोलोगे कि बार बार एक बात कर रहा हूँ, बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपका एक है, आप एक हो, आपका मिलने वाला भी एक है, आप एक हो, आपको मिलने वाला भी एक है। जब तक आप नूरी परमात्मा की, निर्गुण परमात्मा की, नूरी अल्लाह की और निर्गुण प्रकाश की, निर्गुण ज्योत की अपने अंदर ध्यान नहीं धरते, तो आपकी ज्योति उस ज्योत स्वरूप परमात्मा से मिल नहीं सकती। आपकी आत्म ज्योति जो है वो ज्योत स्वरूप परमात्मा से मिल नहीं सकती। परमात्मा ज्योत स्वरूप है, निर्गुण है, पंच तत्व परमात्मा नहीं, पंच तत्व परमात्मा नहीं। उसकी प्राप्ति करने के लिए आपको उसका ध्यान करना पड़ेगा, उसका ध्यान करना पड़ेगा, ये आपकी जरूरत है। क्योंकि जगत वाले, जब जगत से किसी से, संसार वाले गुरु से बात करो, ये कैसे हो सकता है आप सीधा ध्यान करोगे, आपको गुरु की जरूरत है। गुरु के बिना आपको ज्ञान, आपको रास्ता कौन दिखाएगा? अगर गुरु ही क्या, गुरु को रास्ता मालूम नहीं है तो उसको रास्ता कौन दिखाएगा? गुरु शब्द है, गुरु क्या है, गुरु क्या है, शब्द है, निर्गुण है। और वो कहाँ पैदा हुआ? परमात्मा ने अपने भीतर में से निर्गुण शब्द को पैदा किया। जो उसके भीतर में पैदा हुआ, तो आत्मा कहाँ से आई है? जितनी आत्मा है 84 लाख योनि की, वो कहाँ से आई? परमात्मा से आई। इतनी 84 लाख योनि की आत्मा कहाँ से आई है? परमात्मा से आई है। तो परमात्मा कितने? एक। हमारी आत्मा कितनी है? एक को किससे मिलना है? एक को किससे मिलना है? एक से। तो कैसे मिलना है? आत्म आत्म परमात्म, आत्म परमात्म ऐप परमेश्वर। जैसे कान्हा ने बोला सो हम, सुना ना आपने, पढ़ा ना गीता में, सो हम, सो हम, परमात्मा जो तू है सो मैं। फिर ये क्या है? परमात्म, आत्म, आत्म, तू मेरा तो मैं तेरा। प्राणी क्या बोलता है? क्या प्रभु, तू मेरा तो मैं तेरा। ये सारी सृष्टि के लिए उसको मिलने का एक विधि है। क्या बोलना है प्राणी को? सभी प्राणी आप अपनी 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 भाषा में बोल सकते हैं। सभी प्राणी, देखो सारे संस्कृत नहीं पढ़ सकते, सारे हिंदी नहीं पढ़ सकते, इतनी भाषाएं, और हर भाषा में तू भी है तो मैं भी, हर भाषा में तू भी है तो मैं भी। अपनी अपनी भाषा में जैसे भी उन लोगों की भाषा है, वो तू मेरा तो मैं तेरा बोल सकते हैं, तो परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, शब्द की प्राप्ति कर सकते हैं। ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा एक के ऊपर। कितनों के ऊपर? एक के ऊपर। वो कौन है? निर्गुण ज्योत अकाल। कौन है? निर्गुण ज्योत अकाल। पंच तत्व का इष्ट नहीं, पंच तत्व शरीर का इष्ट नहीं है। किसका इष्ट है? निर्गुण ज्योत अकाल पुरुष का इष्ट है। आप बोलोगे कि ये क्यों लगाया? ये तो मूर्ति है, बिना शक। ये ऐसी शक्ल सूरत मूर्ति ना होती तो ये नहीं आती। ये अगर शक्ल सूरत ना होती तो वेद शास्त्र ग्रंथ लिखे नहीं जाते। लेकिन उन वेद शास्त्र ग्रंथों में सूरत की जो सूरत है जो लिखी गई है, उसकी मनावत कहीं नहीं लिखी।
मनौत किसकी लिखी गई है? जिसकी कोई सूरत नहीं, जिसकी कोई सूरत नहीं। जब वो मनौत लिखी है सारे वेदों शास्त्रों ग्रंथों में, जब तक हम वो उसकी मनौत नहीं करते तब तक हम भगवान को मिल नहीं सकते। ये कलयुग अंतम का ज्ञान है कि है परमात्मा, तू मेरा तो मैं तेरा, तू मेरा तो मैं तेरा। वक्त काफी हो गया, ज्यादा टाइम लगेगा तो समझोगे नहीं। वाणी आगे भी है थोड़ी, लेकर टाइम 2-4 लाइनें ले सकते हैं, 2-4 लाइनें पढ़ के फिर बंद कर देंगे, उसको समझो। पहले ये 4-5 लाइनें पढ़ी हैं, इसके आगे इतना शुरू कर देंगे। हरजू सादा हरजू सादा आप ना दिसे। जो परमेश्वर है वो साधु संतों को आप कभी नजर नहीं आता, वो साधना करते हैं। साधु वही है, साध वही है जो साधना में संपूर्ण। लेकिन त्यागने से, त्याग करने से मन का त्याग नहीं होता, जगत का त्याग करेंगे, जगत की विभूति लगाएंगे शरीर को खाक जैसा करने के लिए, लेकिन मन को खाक कोई नहीं करेगा। जब तक मन खाक नहीं होता तब तक तन खाक नहीं होगा। तो कुछ विद्वान या संत या महापुरुष बोल देंगे ये तो सारा कुछ मर के होगा। जब जीवते जी, जब जीवते जी जीवते जी आप मर जाओगे, अपना खत्म कर लोगे, तो शरीर को विभूति लगाने की जरूरत नहीं। साधना क्या होगी? पूरी हो जाएगी। साधना क्या हो जाएगी? पूरी। सत पूरा हो जाएगा, सत पूरा हो जाएगा, संत बन जाएगा, सत पूरा हो जाएगा। नॉर्मल प्राणी जो है वो सत बन सकता है, सत बन सकता है, उसका भक्त बन सकता है, उसका दर्शक बन सकता है। तो क्या करेगा? हरजू साधा आप ना जिससे, भगवान जो है साधुओं को नजर नहीं आता। हरजू भगवान है ना जिससे बैठा मुख छिपाइया, भगवान उनसे क्या बैठा है? कैसे? मुख छिपा के, अपना आप दिखा नहीं, वो प्रगट है, भगवान प्रगट है, लेकिन भगवान साधु से संतों से कैसे बैठा है? मुख छिपा के। मुख क्या है? चेहरा। मुख क्या है? चेहरा, अपनी सूरत छिपा के बैठा हुआ है। जी राम कृष्ण नानक गोविंद ईसा मूसा मोहम्मद पढ़ दे किसे, है ना, सभी उनको याद करते हैं, सभी उनको याद करते हैं। तो उनको भेजने वाला कौन था? उनको भेजने वाला कौन था? एक परमात्मा था। जो एक था उसे कोई याद नहीं करता, जो भेजे गए हैं उनको याद करते हैं, इसलिए वो मिलता नहीं। बोले कई बोलेंगे हमारा राम जी ने जो काम करते हैं, राम जी हमें प्रत्यक्ष नजर आए, राम जी हम प्रत्यक्ष नजर आए। नहीं, कौन आता है? आता है जो जिसके इष्ट रख के बैठे हुए, वो अपनी अपने अपने लिए, अपनी लज्जा के लिए वो खुद मिलता है। कौन मिलता है? वो रूप धारण करके मिलता है, लेकिन वो बोलता है कि मैं मिट्टी खाक का नहीं, मिट्टी खाक का नहीं। प्राणी के विश्वास के लिए आके मिलता है, वो मिट्टी खाक का नहीं है, वो निर्गुण है। वो क्या है? निर्गुण है, नूरी है, प्रकाश है। वो मिलता है। इसीलिए साधु संतों को वो अपना मुख दिखाता नहीं, अपनी सूरत दिखाता नहीं, कभी किसी को नजर आता नहीं हो। जी अपनी किस्मत ना किसे अजमाइया। और किसी ने भी अपनी किस्मत नहीं अजमा कर देखी। उनकी किस्मत कैसे? पढ़ते हैं, उनको याद कर रहे हैं सारे, लेकिन अपनी किस्मत को अजमा कर नहीं देखते, भगवान के आगे सरेंडर नहीं करते, निर्गुण को निर्गुण के आगे सरेंडर नहीं करते। निर्गुण आत्मा, निर्गुण परमात्मा, अपनी आत्मा को परमात्मा के आगे सरेंडर नहीं करते। जब ये कर दोगे तो ये 9 द्वारे वाला शरीर, जितनी क्रियाएं हैं, वासनाएं सारी वो भगवान अपने वश में कर देगा। कौन अपने वश में करेगा? परमेश्वर अपने वश में करेगा। हाँ, ज्यादा देर नहीं लगेगी, कुछ देर के लिए, 10 मिनट के लिए रुकना। हर का नाम किसे ना आया हिस्से। और प्रभु का नाम किसी के हिस्से में नहीं। हकीकत में उसका नाम ही कोई नहीं। देखो सीधी सी बात समझिए आप,
आप बैठे हुए हो, सारे बैठे हुए हैं ना। जब आप पैदा नहीं हुए थे आपका नाम क्या था? आपका कौन पति था, कौन पत्नी थी, किसको क्या मालूम? नहीं मालूम। तो जो पैदा नहीं होता, जिसका रूप रंग रेख नहीं है, वो नूरी है, उसको कैसे पाओगे? उसको कैसे पाओगे? जब तक अपना ये जो पंच तत्व शरीर है, ये सरेंडर करके आत्म को उसके आगे पेश नहीं करते, वो नूरी नजर नहीं आए, वो नूरी नजर नहीं आएगा। जितना मर्जी ज्ञान प्राप्त करो, जितना मर्जी पढ़ो, जितने मर्जी भगवान को नाम दे दो, लेकिन वो अनामी है, उसका कोई नाम नहीं। जैसे आत्मा का नाम नहीं है, आपके जन्म से पहले आपका नाम नहीं था, आपने जन्म लिया, माता पिता ने नाम दे दिया। अगर जब आप खत्म हो गए तो आपके मरने के बाद आपका नाम क्या? आपके दादा परदादा नाना नानी सारे चले गए ना, माता पिता भी जिनके चले गए, उनका अब नाम क्या है? कोई है? जब आप पैदा नहीं हुए थे तब आपका नाम क्या था? जो पैदा ही नहीं होता भगवान का नाम क्या है? तो पैदा नहीं होता, मरता भी नहीं है, तो उसका नाम क्या? अनामी। नाम जगत के संसार के गुरु अवतारों पैगंबरों ने रखे, सिफती नाम है। वो क्या है? प्रभु के सिफती नाम है। सिफती नाम उसके अनेक हैं, लेकिन परमात्मा कितने? एक। तो मिलना कितनों से है? एक से। आत्म परमात्म आत्म जीव। हर का नाम किसे ना आया हिस्से, खाली झोली रहे वखाइया। सबकी जोड़ी जो क्या है? खाली। किसी के हिस्से भगवान आया नहीं। जी। गुरु ग्रंथ अंजील कुरान वेद पुराण पत्रे खोल वेख दे चिट्ठे। और जो जितने धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, वेद शास्त्र ग्रंथ, अंजील कुरान गुरु ग्रंथ साहब, वो सारे उनके पत्रे खोल के देखते हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहब की रचना परमेश्वर ने की, सतगुरु ने की है। गोविंद शब्द, गोविंद निरंकार का रूप, नानक निरंकार का रूप था, नानक निर्गुण भी था, नानक सर्वगुण भी था, नानक शब्द भी था। तीन तरह का नाम आता है, नानक नानक नानक। नानक शरीर है, नानक शब्द है, नानक निरंकार। इसी तरह गोविंद, गोविंद शब्द, गोविंद शरीर है, तो गोविंद पार ब्रह्म। देखो सब गोविंद के पहले भी तो गोविंद का नाम चलता ही था ना। गोविंद के पहले भी तो गोविंद था, हर गोविंद, हर गोपाल, इसको बोलते। लेकिन जब गोविंद शब्दीधार होके आया, उसने अपना वो रूप दिखाया जो कभी पहले किसी ने देखा नहीं था। क्यों दिखाया? वो बोलता है कि मैं एक का ही हूँ। जो उसने उसके अपने थे, अपने हाथों ही कुर्बान करवा दिए, अपने हाथों कुर्बान। लेकिन फिर भी क्या बोला? बोले सो सत श्री अकाल। तो श्री अकाल को सत बोलेगा वो खुश। कहीं ये बोला ही नहीं है कि मेरा परिवार सारा चला गया तो मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? परिवार को पैदा करने वाला भी वही था, तो खत्म करने वाला भी वही। पैदा करके भी खुश था, और जब चले गए सारे तब भी। ये पंच तत्व आपका, जब ये सारा कुछ उसके हवाले कर दोगे, फिर निराशा हाथ में नहीं लगेगी, खुशी खुशी और प्यार ही प्यार आपको मिलेगा। आपको आपका परमेश्वर मिल जाएगा। ये प्राप्ति आपको अपनी खुद करनी पड़ेगी, खुद करनी पड़ेगी। मिलना आपको खुद को है। आत्मा आपकी है तो परमात्मा भी, आत्मा आपकी है तो परमात्मा भी आपको अपने ही परमात्मा से, अपने ही पाप से मिलना है, और किसी को मिलने की जरूरत नहीं। जी। गुरु ग्रंथ अंजील कुरान वेद पुराण पत्रे खोल वेख दे चिट्ठे, अपनी चिट्ठी हाथ ना किसे पढ़ाइया। और किसी ने अपनी आत्म जो है वो परमात्मा के हाथों में दी, उनको ही पढ़ते हैं, सारे वेदों शास्त्रों ग्रंथों को पढ़ते हैं। जो आए थे उनका ही नाम जप रहे हैं, लेकिन उसका नाम जो अनामी है
उसका नाम कोई ले नहीं रहा। कह परमात्मा तू मेरा तो मैं तेरा। जी। कोई ना जाने प्रभ वसदा किथे। और अभी तक जितने ये ग्रंथ शास्त्र हैं बोलते हैं कि वो वैकुंठ में है, वो सचखंड में है, वो वहां रहता है, वो वहां रहता है, कोई कहेगा भीतर रहता है, कोई कहता है आसमानों के ऊपर रहेगा, लेकिन हकीकत में उसका निशानदेही कोई कारण नहीं पाया। हकीकत में उसकी कोई निशानदेही कारण नहीं पाया। हो सकता है मेरी बातों को वो काटे भी क्यों नहीं कर पाया, फलानी जगह उसकी निशानदेही। जो उसको मानते हैं उनके लिए है, जो नहीं मानते उनको मनवाओ, संसार को मनवाओ को वो वहां रहता है। जब तक संसार आपके पीछे नहीं लगता आपका मनवाने का कोई मतलब नहीं लगता। जी। कोई ना जाने प्रभ वसदा किथे, इशारे नाल ना कोई समझाइया। और कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकता, कोई इशारे से समझा नहीं सकता कि भगवान कहाँ रहता है। जी। मन वासना कोई ना जिते, आशा तृष्णा ना कोई मिटाइया। और मन की वासना को खत्म नहीं कर सकता और इसको जीत नहीं सकता। और मन जो है, तृष्णा जो है, आशा है, जो ख्वाहिश है, इसको कोई खत्म नहीं कर रहा, ये बढ़ती जा रही है। जी। ज्योति ज्योत स्वरूप हर। और जो खेल करता कौन? सर्व आत्मा का खेल का करता है वो कौन है? सर्व आत्मा का परमात्मा। जी। आप अपनी कृपा कर। वो अपनी कृपा आप करता है, उसका कोई गुरु नहीं है, उसका कोई परमेश्वर नहीं है, वो अपनी कृपा खुद आप करता है, किसी से भीख नहीं मांगता, किसी से दया नहीं मांगता। जी। करे खेल साचा हार। और जो ये खेल करता है, जो खेल का करता है वो कौन है? साचा हरि है, परमेश्वर स्वयं आप है, सारी रचना का मालिक है, सारी रचना का मालिक। जी। वेखण हारा थाओ थाइया। और जगह जगह जहाँ प्राणी जमीन के नीचे जो चल रहे हैं 84 वाले, उनको भी देखता है। जो ऊपर चल रहे हैं, कितने बैक्टीरिया, कितने अमीबा, पैरामीश, कितने प्राणी पैदा हो रहे हैं, हवा में पैदा हो रहे हैं, हवा में मर जाते हैं, लेकिन हम उनको आंखों से देख नहीं सकते। इतने पानी में कितने रह रहे हैं, 42 लाख जूनी नीचे पानी के नीचे है, तो 42 लाख जूनी धरती के ऊपर तो आसमान में है। और सारी रचना को रचने वाला कितने हैं? और सारी रचना का मतलब ही एक को मिलने का है। हम प्राणी हैं, जान सकते हैं, सोच सकते हैं, हम उसे एक को ही मिले, एक की सोच रखें। परमात्मा तू निर्गुणा है तो मेरी आत्म निर्गुण है, तो आत्म निर्गुण है तो परमात्मा भी निर्गुण है। दुनिया वाले ज्ञान करता है, जिनका ज्ञान खत्म होगा बोलेंगे कि हमारी मनौत होगी, मनौत खत्म हो रही है, तो बोलेंगे गुरु के बिना तो ज्ञान हो नहीं सकता, वो कैसे होगा? जो गुरु पढ़ के ज्ञान दे रहा है वो कहाँ से पढ़, भगवान कहाँ से दे? जो गुरु ग्रंथों वेदों शास्त्रों को पढ़ के ज्ञान देता है वो भगवान दे नहीं सकता। वो दिए हुए को पढ़ के बता रहा है, वो दिए हुए को पढ़ के बता रहा है। जो पढ़ने से भीतर का ज्ञान नहीं पैदा होता, भीतर की सिद्धि पैदा हो सकती है, रिद्धि पैदा हो सकती है, कोई किसी को वश में किया जा सकता है। वो अक्षरों की विद्या है, वो तंत्र विद्या, जंतर विद्या है, मंत्र की विद्या है। लेकिन मंत्र वो जो मन को जीते, मंत्र कौन है? जो मन को जीते। तंत्र वो है जो मन को खत्म ना कर पाए, जंत्र वो है जो मन के ऊपर, जो शरीर के ऊपर कोई असर ना करे। जो उसको उसकी आराधना करता है उसके ऊपर कभी कोई मंत्र तंत्र चलता नहीं, उसके ऊपर कभी मंत्र तंत्र नहीं चलता। तो कितनों की मनौत करनी चाहिए? कितनों की कितनों की मनौत करनी चाहिए? जो जन्म अवतारों के पहले भी था, अब भी है, इसके बाद भी होगा। देखो, आपने सुना होगा कि जब कल की अवतार आएगा वो युग पलटी करेगा, सच जुगेगा। अब ये 994 चौकड़ी युग का आखिरी कल युग है। अब जग पलटी नहीं, वो तो होगी होगी, जिसे आप इंग्लिश में बोल देंगे इरा चेंज होगी, इरा तब्दील हो जाएगी। लेकिन अब वो कॉस्मिक चेंज करेगा। अब वो क्या करेगा? कॉस्मिक की तब्दीली करेगा, ब्रह्मांड की तब्दीली करेगा। कौन सी तब्दीली करेगा? जो ऊपर की है वो तब्दील करेगा। ऊपर की भी तब्दीली होगी तो पंचतत्व शरीर के भीतर की भी तब्दीली होगी।
जो रचना इधर है वही रचना बाहर, जो यहाँ ब्रह्मांड में जो इधर है ब्रह्मांड वही ऊपर है, जो ऊपर है वो इधर है, जो धरती की रचना है वो इधर है, जो इधर है वो धरती की रचना है। इसीलिए ये मिट्टी मिट्टी पे मिल जाती है, इसीलिए जो पंच तत्व शरीर है मिट्टी से पैदा होता है, मिट्टी से खाता है तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन मिट्टी से मुक्त होने के लिए वो कभी उसको याद नहीं करता जो मिट्टी को बनाने वाला है। जब बनाने वाले को याद करोगे तो वो एक है जिसका कोई नाम नहीं है, वो तो मेरा तो मैं। चलिए बाकी अगर आप थोड़ी दिलचस्पी हुई शाम को आ जाना, फिर प्रोग्राम लेकर चलेंगे। सवाल रखना, अब भी रखना चाहते हो तो रख सकते हो, क्वेश्चन करना चाहो कोई भी कर सकते हो, तो शाम को करना होगा तो फिर आ जाओ, क्वेश्चन करो, बात लेकर चलेंगे। वाणी किसी भी ग्रंथ की कोई भी निकाल लेना, उसी में से आपके सवाल होंगे, उसी में से आपके जवाब। वाणी का मतलब वही होता है कि रचना हो वो अंतर की भी हो तो बाहर की। बात तो समझते हैं मेरी कि नहीं? तो चले तो मेरा मैं तेरा। कैसे है प्रभु, तू निर्गुणा है, तेरा रूप रंग देखने मरता नहीं, तू पैदा नहीं होता, तो मैं तो तेरा हूँ, तो तू किसका है? मेरा। इसलिए कि जब मेरा शरीर खत्म हो तो मुझे अपने पास ले जाओ, मुझे अपने पास ले जाओ। मेरे कर्म और कर्म तेरे चरणों में, मेरे कर्म और कर्म तेरे चरणों में, मेरा कर्म भी तेरा, मेरा कर्म भी, मुझे रास्ता तू दे, मुझे किसी गुरु से, जगत गुरु से, पंच तत्व शरीर के गुरु से कोई रास्ता लेने की जरूरत नहीं है। संसार वाले बोलेंगे कि जरूरत पड़ेगी, कि अगर जरूरत पड़ती है तो जितने गुरु है उतने ही धर्म है, जितने गुरु है उतने ही धर्म है। हकीकत में धर्म कितने हैं? एक है, आत्म आत्म परमात्मा मिलनी धर्म है, बाकी की सब शरा है, बाकी की सब शरा है। समाज के चलने के तरीके, समाज के चलने के तरीके हैं, मुस्लिम शरा है, शिया की बकरी है, सुन्नी की बकरी है, जितने बाकी 70 फिरके हैं उनकी शरा अलग है। इसी तरह हिंदुओं का कोई किसी लीग के ऊपर चल रहा है तो किसी लीग के ऊपर चल रहा है, पर जब तक सभी के सभी हिंदू हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बूढ़ी, जैनी, जितने भी यहूदी हैं, जब तक सारे एक की बात नहीं कर सकते, जो सृष्टि पर एक होकर नहीं रहते, तो झगड़ा रहेगा। हिस्ट्री वाले जो बोलेंगे ये तो बड़े आदि युग से बड़े पुराने समय से चलती आ रही है, हजारों सालों से लड़ाई चलती आ रही है, तो हजारों सालों से यही रटा था, भगवान का ही रटा था, भगवान ऐसा नहीं है वैसा है। अगर ये भगवान की ये मौत हो कि भगवान निर्गुण है, वो कभी पैदा नहीं होता, कभी मरता नहीं है, नूरी है, तो आत्म भी नूरी है। जब नूरी को नूरी से मिलना है तो झगड़ा नहीं है, परमात्मा भी वक्रे नहीं है, आत्म भी वक्री नहीं है, आत्म एक है, परमात्मा एक, तो कितने की मौत रहेगी? एक ही। तू मेरा तो मैं तेरा। चलिए साथ दोगे? तो मेरा मैं तेरा, तो मेरा मैं तेरा, तो मेरा मैं तेरा, तो मेरा मैं तेरा, तो मेरा मैं तेरा। सो भगवान की जय। भगवान की जय। भगवान की भगवान की जय।
बाकी अगर